आज का दिन बहुत ही पावन, पवित्र, पायस, मुकद्दस है। आज तीज का दिन है, तीज का त्यौहार है। और तीज जो है वो हमारे ख़ास तौर पे ग्रामीण परिवेश में बहुत ही न केवल इसकी इंतज़ार रहती है बल्कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। स्पेशली कंट्री साइड में, शहरों में भी मनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितनी चीज़ें ग्रामीण जीवन से, ग्राम्य जीवन से इसकी वाबस्ता हैं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं और वो एक ज़िक्र के काबिल हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज ही के दिन से वाबस्ता सावन के दिनों में जब लड़कियां, बहनें, हमारे घरों की बेटियां जब अपने ससुराल में होती थीं और जब उनके अंदर एक ये इच्छा होती थी कि मायके के साथ, पीहर के साथ एक बार फिर से रिश्ता जुड़े, भाई आए या नाई आए या कोई भी घर का आए जो कोथली सिंधारा लेके आए सावन के महीने में, और उस बेटी के मन में, उस बहन के मन में जो जज्बात हुआ करते थे, वो मैंने एक मिडल में लिखे थे, अभी हाल ही में छपा है। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर बाकायदगी से शुरू करूं, मैं समझता हूं कि ये मिडल में पढ़ूं तो आपको और अच्छा लगेगा। और एक गीत था शैलेंद्र का बंदनी में गीत आया था, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन मेली जो बुलाए। शैलेंद्र की खासियत थी कि जितना भी कंट्री एक्सप्रेशन था, जितने भी कंट्री डायलेक्ट के जो न्यूएंसेस थे, जितनी भी ऐसी सिचुएशंस थी, वो अपने गीतों में उनको बुना करते थे, उनको उचित स्थान दिया करते थे और एक किस्म से उन माहौलों को, उन वातावरणों को जिनमें वो पले बड़े थे, उनको ज़िंदा रखने की कोशिश की थी उन्होंने। और बहुत से गीत उनके ऐसे हैं जो देशज भाषा लिए हुए हैं या देश की माटी या अपनी मातृभूमि से वाबस्ता है। ये थोड़ा सा है अलग से, लेकिन ये मिडल आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि मुझे पढ़ देना चाहिए। Some songs transport you to the virtual ambience, if not the actual and obtaining happenstance. And that's the beauty of a composition, which even if not set to music has a musicality of its own, lyrical flow and meter. More than the architecture or technique, a song or a poem, its content and finer nuances of understanding and grasp, coupled with the fact that it touches your heart in several ways, is the treasured value for any work of art. Now, the song I am referring to is, in particular, a number from the movie Bandini, filmed on the beautiful and accomplished actor Nutan. The predicament of a daughter having been married away from her parental home is that of someone who is not only nostalgically longing a reunion with her kith and kin, but that of a helpless being who had to sever all connections with her past and pals for all times to come, and only to be in touch with them in imagination. I am depicting a scene from the countryside. In the instant song, a daughter beseeches her father to have her brother dispatched to her in-laws' place to fetch her, when it would be the month of Savan. It's a very emotional call of the daughter to one's parents to afford her visitation to them by approaching the parents-in-law. In the traditional Indian way of life, a girl was always considered to be paraya dhan, on which the real owners did not have any claim after she was married away and sent to her husband's place. Having seen the countryside household milieu and the institution of traditional marriages, I can empathize with these daughters whose wishes have been always dominated by the diktats of husbands and in-laws. Hence the longing for having a renewed fiat, licensed occasionally to reassure a renewed resilience by reunion. बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुरा ली, बाबुल थी मैं तेरे नाजों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई. These lines give goosebumps
To any person with sensitive heart. Loosely translated, it means the cursed youth robbed me of my toys, especially my doll. Oh, Father, I was your most beloved and indulgently reared one. Then how come I became a stranger? I remember the brothers visiting their married sisters on different occasions with gifts from the parents. If the brothers could not be spared, then the village nigh or the barber would be sent with traditional ensemble of clothes and indigenous sweetmeat prepared at home. I also remember that once in house of the in-laws of the daughter, and she would have 1,000 questions to ask the brother or the nai or any representative from the last family about. I'm talking about the times when the girls did not have any means of communication with their family back home, neither letters nor some other way of getting connected. In this very brief tryst with someone from one's family, this private audience available to the visiting one would include questions like, how's my mother's asthma treating her? How's grandfather's condition after having gone paraplegic in lower limbs? How is my younger brother doing in his studies? Did any of my friends get married since I last heard of them? How are the crops prospects this season? Will any of the childhood friends be there when I will visit you all? These married away girls would always lament the loss of people around if they were reported dead. They also would be interested if there were any new schools or hospitals constructed back home. More importantly, they would be keen to know if there were laid any roads leading from the village railway station to the village, since previously they had to cross through the swamps and hard soiled fields. It's all a painful recall, though nostalgic. Now, in this ambience, in this environment, ऐसे वातावरण में यदि आप तीज के दिन की महिमा का अगर बखान करें तो बहुत ही एक उम्दा विषय आपके सामने अनफोल्ड करेगा। और जहाँ तक हरियाणा का ताल्लुक़ है, हरियाणा की जो फोकलोर है, फोक ट्रेडिशंस हैं, फोक कल्चर है, उसमें भी तीज का सामंजस्य है। और न केवल फोकलोर और फोक टेल्स में है, फोक हिस्टोरिकल डिटेल्स में, अकाउंट्स में है, बल्कि यहाँ का जो भी लोकल जो साहित्य यहाँ वर्ड ऑफ माउथ से जनरेट हुआ। अनफॉर्चुनेटली हरियाणा में इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई और इट्स ओनली बाय वर्ड ऑफ माउथ दैट वी रिमेंबर ऑल दोज स्वांग्स एंड ऑल दोज कहानीज एंड किस्सास एंड रागनीज। सो एक निहाल दे सुल्तान का एक स्वांग हुआ करता था, उसमें भी तीज के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तीज के दिन निहाल दे ने संदेशा भेज दिया था कि वो आत्मदाह कर लेगी यदि उसे न बचाया गया या सुल्तान से उसकी मुलाकात मिलन नहीं होता। ये विरह और मिलन का एक अजीब सा यहाँ इस स्वांग में संयोग देखने को मिलता है। पता लगता है कि निहाल दे जो है वो मुग़ल शासकों की कैद में है और फिर एक गोधू जाट और जानी चोर की मदद से इसका रिलीज़ जो है वो सिक्योर कराया गया और एंड टाइम पे सुल्तान जो है वहाँ पहुँचा और वो तीज का दिन था और उस दिन उनका जो है वो मिलन हुआ। हिस्टोरिकली स्पीकिंग राजा सूरजमल जो एक अभी थोड़े दिन पहले पानीपत एक मूवी भी आई है जिसमें महाराजा सूरजमल जो हमारी भरतपुर रियासत के शासक हुआ करते थे, बहुत ही उम्दा इंसान, उनके बेटे भी जवाहर सिंह वगैरह, बहुत ही लीडर लाइक क्वालिटीज़ थी इन लोगों में। और अहमद शाह अब्दाली के साथ जब लड़ाई हुई और मराठों की जहाँ शिकस्त हुई, हार हुई, वहाँ महाराजा सूरजमल ने मराठों की मदद की थी और तीज के दिन कुछ युवतियों को पठानों से जो है वो छुड़वाया गया था, कैद से आज़ाद कराया गया था। तीज जो है वो एक ऐसा त्यौहार है जो ऐसे माहौल में आता है जब सावन की फुहारें जो है वो पड़ रही होती हैं
और मेंढक टर्राने लगते हैं, झिंगुर झी झी करने लग जाते हैं, राम की गाय उड़ना शुरू कर देती है, और एक मखमली कीड़ा होता है लाल रंग का, वो भी निकल आता है, और इधर उधर जो है वो मंद मंद साएं साएं चलती हुई हवा, और बहुत ही एक हमारे आगे उभरता है जिसमें कोयलें बोलती हैं, कूकती हैं। और मुझे याद है हमारी ननिहाल में जब मैं जाया करता था, ककरोई गांव सोनीपत में, तो वहाँ मोर बहुत होते थे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मोरों के बोलने की आवाज़ आया करती थी, और मियाँ हूँ करके हम लोग भी जब बच्चे थे तो जब मी के आने की बाट होती थी और मी के आने की हम लोग इंतज़ार किया करते थे, तो मियाँ हो जो है वो किया करते थे, जैसे मोर बोलता है। इस सीज़न में, इस माहौल में, इस तीज को, जैसे ये तीसरे दिन आती है, और मुझे इसलिए भी थोड़ा सा जो है वो तीज से एक ख़ास लगाव है, क्योंकि मेरे दादाजी जो है वो तीज के दिन पैदा हुए थे, और उनका जन्मदिन लूनर कैलेंडर के हिसाब से हमेशा तीज को ही आया करता था। और उनको एक ख़ास आदत थी ऐसी कि अपने जन्मदिन वाले दिन वो गांव के 50-100 बूढ़ों को बुलवा के घर में खाना खिलवाया करते थे, और खीर बनवाया करते थे, और सारे गांव को पता था कि आज चौधरी महासिंह का जन्मदिन होगा, तीज के दिन दावत लुटेगी। और यदि किसी कारण से किसी तीज के अवसर पे वो ना ये दावत दे पाते तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, और हम लोग मजाक में भी कहा करते थे, दादाजी आप कौन सा जवाहरलाल नेहरू हो जो आपका जन्मदिन इस तरह से मनाया जाता है ये वो। बट ही वॉज सो पैशनेट अबाउट तीज एंड feasting and feeding all the old men and women of my village Anta around. तीज का जैसे तीज का जो माहौल होता है, उस माहौल को बड़ा सद्भाव का माहौल गिना जाता है, और कहते हैं तीजन भी एक वर्ड जो है वो तीज से ही निकला है। और तीजन वो कुंवारी लड़कियां होती हैं जो सूत काटती हैं और साथ बैठती हैं, और तीजन एक किस्म का कम्युनिटी सिटिंग और कम्युनिटी कोहेबिटिंग का एक भाव लेके जो है वो आती है। तीज के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने घर में तैयारी करते हैं। आप कच्ची घानी का सरसों का तेल घर का निकला हुआ, उसमें आप किसी ज़माने में गुलगुले और सुहाली बनवाया करते थे, और वही गुलगुले और सुहाली लड़कियों के कोथली और सिंधारे में भेजी जाया करती थी, जिसमें एक पटड़ी भी थी, पटड़ी भी हुआ करती थी, शनील के धागों से उसकी कशीदाकारी हुआ करती थी, और अक्सर गुलाबी रंग की पटड़ी हुआ करती थी जो भेजी जाया करती थी कोथली या सिंधारे में। और वो सुहालियाँ जो हैं वो मुझे याद है कि 15-15, 20-20 दिन के बाद तक भी, महीने के बाद तक भी, यदि पीपे में या झाकरी या मटका जिसमें वो रखी जाया करती थी उसमें से कुछ मिल जाता था, तो बच्चे बड़े शौक से उनको चबा चबा के भी खाया करते थे। एंड दे नेवर यूज्ड टू गेट डैमेज्ड और स्पॉइल्ड और थिंग्स लाइक दैट। सो हमारे मैं ज़्यादातर अपनी ही बात करता हूँ, मेरा टॉक शो है, तो मुझे अपने बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं जब मैं उनको रेफ़र करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने गांव का एक माहौल आपको बतलाऊं, लेट मी थैंक ऑल दोज हु हैव जॉइंड सो फार। निमी शर्मा, वेलकम। नीतू सिंह, रविंद्र कुमार, प्रिंसिपल भूपेंद्र कौमुदी, राहुल बत्रा, सुधी सरोहा नाथ, साहिल वैद एंड सुभाष कपूर। थैंक्स फॉर बीइंग देयर ऑल ऑफ यू। जैसे मैंने बताया, अपने गांव की बात पे बाद में आऊँगा, पहले मैं जींद के माहौल की बात करता हूँ। जींद में, हेलो संजीव अरोड़ा, जींद में उस ज़माने में बहुत पहले की बात है, 60s के आसपास की बात है, ये जो रानी तालाब होता था इसके चारों तरफ आम के पेड़ हुआ करते, बहुत बड़े बड़े ह्यूज। और तीज वाले दिन मुझे याद, हैप्पी नर्सरी स्कूल में उस टाइम पढ़ा करते थे, और हमारे तिमंजले मकान से वो भूतेश्वर मंदिर दिखाई दिया करता था, जिसके चारों तरफ के हरे भरे बहुत बड़े बड़े फॉलिएज के साथ आम के पेड़ हुआ करते थे। और सारा जींद शहर ऑलमोस्ट सारा निकल पड़ता था
तीज के दिन महिलाएं, पुरुष, जवान, बच्चे और उन आम के पेड़ों पे सैकड़ों सैकड़ों ही झूले जो है वो डले हुआ करते थे। वो बाद में कट गए, 70s में आके पेड़ भी काट दिए गए अनफॉर्चुनेटली। यदि आपको उस ज़माने के उन पेड़ों का नज़ारा करना है तो आप आज भी पवित्र पापी फिल्म देख सकते हैं। पवित्र पापी फिल्म में एक गीत है, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भई अल्लाह ही अल्लाह। वो गीत जो है वो जींद के उस तालाब के चारों तरफ जो पेड़ थे उन पे डले झूलों, उन पेड़ों के ऊपर जो वो फिल्माया गया था। आज भी और कहीं मुझे इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती, बट इस फिल्म में पवित्र पापी में उन पेड़ों को आप देख सकते हैं जिन पे कभी सैकड़ों ही सैकड़ों जो है वो झूले पड़ा करते थे और गीत गाए जाया करते थे। ये तो शहरी माहौल था जो, और शहरी और देहाती माहौल की बात नहीं है, ये हमारी कंपोजिट क्यूमुलेटिव कल्चर की बात है। ये हमारी जो है वो नॉर्थ इंडिया की कल्चर ऐसी है जो इन त्योहारों को मनाती है और जिनके पीछे अपनी अपनी तरह की जो क्षेत्रीय कहिए एट्रीब्यूट्स हैं वो मिल जाया करते हैं और उसी संदर्भ में वो एक ख़ास चीज़ बन के याद की जाती है और मनाई जाती है। उषा पांडे, वेलकम। महासिंह पूनिया, हाउ आर यू डूइंग? आपका एंकरिंग अभी शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में। अंतर्राष्ट्रीय तीज मेला जो उजमा की बैठक मनाई जा रही है, आज 1 बजे के करीब ये लोग शुरू करेंगे। देखने लायक, सुनने लायक होगा। अनूप लाठर और महासिंह पूनिया उसकी एंकरिंग करेंगे और हमें लगता है कि फूल सिंह मलिक और इन लोगों के प्रयास से ये अंतर्राष्ट्रीय तीज मेला, जिसमें बहुत से हरियाणा के लोग जो है वो शिरकत करेंगे, मुझे उम्मीद है। 1 बजे वो शुरू होगा। आप लोगों को भी जिनको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर देखिएगा कि हमारे लोग जो है वो बाहर रह के क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कमिंग बैक टू माय विलेज सीन, तीज के आसपास जो सावन का माहौल होता था उसमें जैसे मैंने पशु पक्षियों का जिक्र किया, ऐसे ही एक डबल डेकर किस्म की एक गिजाई हुआ करती थी और उसके वो कैटरपिलर टाइप जो है वो बहुत से पैर हुआ करते थे और धान के खेत में वो बहुत निकला करती थी। आजकल अनफॉर्चुनेटली नहीं निकलती हैं, दिखाई नहीं देती है, या हम लोग शायद गांव में नहीं जाते हैं या खेतों में नहीं जाते हैं, या वो माहौल जो है वो नहीं बन पाता है या नहीं देख पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज़ कैचिंग अप टू मच विद अस, और जो आज का मॉडर्न ज़माना है वो मेरे ख्याल में हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किए हुए है। गांव की बात पे आता हूँ। जैसे गांव में मनाई जाया करती थी तीज, तो हमारे यहाँ एक जामुन का पेड़ होता था और मेरी दादाजी की भी दादी हुआ करती थी, बूढ़ी माँ हम जिन्हें कहा करते थे, उनसे जब भी उनकी उम्र पूछते थे तो यही कहा करती थी कि वो जामुन के पेड़ जितनी मेरी उम्र है। मैं जब ब्याही आई थी तो ये जामुन का पेड़ जब लगा था ये वो उस जामुन के पेड़ की शायद दादी जितनी ही 90-100 साल की उम्र थी, और उस एक पेड़ पे कोई 10 झूले जो है वो पड़ा करते थे। और दैट वाज द ओनली ट्री, इनफैक्ट देयर वर अदर ट्रीज ऑल्सो, बड़ के और पीपल के बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे आसपास, लेकिन दैट वाज द क्लोजेस्ट। एंड एक और अट्रैक्शन उस पेड़ की ये थी कि उसमें झूले भी आप खाने जाते थे और जामुन खाने भी जाया करते थे, कि आजकल का सीज़न में वहाँ खूब जामुन जो है वो उतरा करती थी। और हमने ये देखा कि हमारे गांव की, घर की, कुड़ी की, परिवार की जितनी महिलाएं हुआ करती थी वो सारी सज धज के और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहन के और मेहंदी लगा के और श्रृंगार करके जैसे जाया करती थी। एक मेहंदी के ऊपर जो है वो एक ये भी चला करता था कि पिया प्रेम की निशानी है मेहंदी, और जिसके हाथ में ज़्यादा गाढ़ी रची जाया करती है, पान रंग की कहते हैं उसको, वो कहते थे कि उसके पिया उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जिसकी कम रचती थी तो उसके कम प्रेम करते। तो इस तरह से ये महिलाएं जब वहाँ जाया करती थी, और एक ही पींग ऐसी नहीं डलती थी, 2-2 पींग भी हुआ करती थी कि दोनों
2 पटरियां होती थी, दोनों में 2 महिलाएं इधर उधर बैठती थी और अपने पैर के अंगूठों से दूसरे की रस्सी जो है वो पकड़ती थी और वो इधर वाली की रस्सी पकड़ती थी। एंड इट वॉज ए काइंड ऑफ डबल डेकर स्विंग। और उसमें होड़ होती थी कि जा अपनी सास की नाक तोड़ के लेके आ। और जब वो पींग ऊंचे जाया करती थी तो कोई ना कोई पत्ता यदि वो महिला तोड़ लाती थी, कोई टहनी तोड़ लाती थी ऊपर से, तो कहते हैं कि ये अपनी सास की नाक तोड़ लाई है। और ये इस तरह से मजाक जो है वो उसमें चलता रहता था। और जो देवर लोग थे वो ख़ास तौर पे हमें याद है, हमारे चचा जितने भी थे वो सारे झटके भी मारा करते थे। और झटकों में कोशिश ये नहीं होती थी कि महिला गिर जाए, लेकिन वो झटकोले बोलते थे, उनकी अपनी एक रोमांस था। और वैसे भी कहते थे कि तीज वाले दिन आदमी को 1-2 झूठे कह लीजिए या झोटा कह लीजिए, हरियाणा में झोटा कहते हैं, वैसे झूठे कह देते हैं, 1-2 झोटा ज़रूर खा लेना चाहिए, नहीं तो कान गल जाते हैं। कुछ इस तरह की जो है वो बातें हुआ करती थी। मुझे ग्रामीण परिवेश के, हालांकि मैं साल में कोई महीने 1.5 महीने से ज़्यादा गांव में नहीं रहा कभी भी, 4 साल का था तभी से बाहर पढ़ने आ गया था, लेकिन मुझे गांव के माहौल की एक एक बात बड़ी बखूबी याद है। और मुझे वो गीत तक भी याद हैं जो माँ और सभी लोग जो है वो महिलाएं बैठ के, चाहे फागुन के गीत थे, चाहे सांझी के गीत थे, चाहे सावन के गीत थे, वो गाया करती थी। और जैसे जामुन के पेड़ पे जब ये तीज के गीत गाए जा रहे होते थे तो मुझे याद है, नीम के नबोली लागी सामणिया कद आवेगा, एक ये गीत होता था। एक ऐसा गीत होता था जिसमें आप जो आपके लड़के थे, ख़ास तौर पर, अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के नाम नहीं लिए जाया करते थे उस टाइम, लेकिन जो लड़के थे आपके परिवार में उनके नाम ज़रूर लिए जाया करते थे। आवेगा रिया आवेगा, मेरा भाई सो एंड सो आवेगा, माँ की तिल बहन का जोड़ा, बहू की झांझण ले आवेगा, एक झांझण भूल गया फिर उल्टा घोड़ा दबावेगा। कुछ इस तरह के गीत हुआ करते थे। जब भी वो सो एंड मेरा नाम आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और आवेगा रिया आवेगा, मेरा भाई राजबीर आवेगा, इस तरह से मुझे बहुत से गीत याद हैं। आंगना में कुआ राजा डूब के मरूंगी, तू मत डरिए राजा और ने डराऊंगी, और रेल बोली रेल की भंभीरी बोली है, किसी ने मेरे हाथ में जंजीर गाली है। ये इस तरह के बड़े मजाकिया से गीत। एक मेरी जो पसंद का गीत होता था, दैट वाज ऑन अ सीरियस नोट, बट हर तरह के गीत जो है वो ये भी थे कि वो गा लो, ये गा लो। मुझे अच्छा लगता था, बाज के परवाना ये रानी सेम सी खड़ी, ये आँखें के में आंसुओं की गालरी घड़ी, कुछ इस तरह से था। और कुछ एक जो है थोड़े से सजेस्टिव से सॉन्ग्स भी हुआ करते थे। कुछ है गर्मी, कुछ है सर्दी, कुछ है जोर जवानी, अंगिया भीगे हमारी, माँ ऐसे ऐसे गीतों पे मुझे अंदर भेज दिया करती थी। और सो इस तरह के माहौल में हम लोग पले बड़े और हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें देखी जो आज के दिन देखने में जो है वो नहीं मिलती हैं। लेकिन वो तीज की जो यादें हैं, जो तीज के माहौल की जो स्मृतियां हैं, वो मानस पटल पे कहीं ना कहीं आज भी ज़िंदा हैं। और वो जैसे उभर के जो है वो आपको न केवल याद कराती हैं बल्कि एहसास कराती हैं कि you have been legated with a very rich culture and culture असल में क्या है? कल्चर एक तो वो है काल जिसको चर गया, और कल्चर वो भी है जो which is carried on the shoulders of one generation to the present generation and further on to further more generations. So कई बार जैसे अभी कुछ सालों से राजभवनों में तीज के त्यौहार मनाए जाया करते मनाना शुरू हुए हैं। अभी कोरोना की वजह से शायद अब की बार नहीं है, लेकिन तीज के त्यौहार, तीज मेले हमारे यहाँ आसपास खूब देखने को मिलते हैं, स्कूलों में भी और कॉलेजेस में भी। और मैं तो चाहूँगा जिस तरह से आपके वैलेंटाइन डे की दीवानगी है, ऐसी दीवानगियाँ यदि अपने त्योहारों को लेके आप मनाएं, करें, एक दूसरे को ग्रीट करें और उन चीज़ों को याद करें जो कभी हमारे भी कल्चर का पार्ट एंड पार्सल हुआ करती थी। इफ़ वैलेंटाइन
जो एक वैलेंटाइन नामक एक प्रीस्ट होते थे या मॉन्क होते थे या क्रिश्चियन सेंट होते थे, उनके नाम से अगर वैलेंटाइन डे चल सकता है तो हमारी तीज में, हमारी बसंत पंचमी में क्या बुराई है यदि हम इस तरह से उसको मनाएं और याद रखें, अपने जीवन में आसपास उसको उचित स्थान दें। और अच्छा ही लगता है बहुत। तो आज के दिन, तीज के दिन में जो है वो आप सभी को तीज की न केवल मुबारकबाद और शुभकामनाएं पेश करता हूं, बल्कि कामना करता हूं कि जिस तरह से झूलों के स्विंग का आनंद जो है वो हम लोग झूलों पर बैठ के तीज के दिन सावन के महीने में लेते हैं, उसी तरह के हिलोरे आप लोग लेते रहें और आपके जीवन में इसी तरह की खुशियां जो है वो आती रहें और आपके दिन, आपके लिए हर दिन तीज का दिन हो। इसी कंक्लूजन के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करूँगा। लेकिन हाँ, दो आपको कथें और एक या दो माय ओन खजुराहो से पोएम्स ज़रूर सुनाऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। कथा पेश है कि जब कभी रात नज़ारों की हुआ करती थी, बस तभी बात सितारों की हुआ करती थी। बस तभी बात सितारों की हुआ करती है। यूं तो दिलों में भी होते हैं दिन रात बहुत, बात बस दिल की बहारों की हुआ करती है। फिर से पढ़ता हूँ कि जब कभी रात नज़ारों की हुआ करती है, बस तभी बात सितारों की हुआ करती है। और यूं तो दिलों में भी होते हैं दिन रात बहुत, बात बस दिल की बहारों की हुआ करती है। और दूसरा कथा पेश कर रहा हूँ कि जर्द रेत पे सहरा के हरी हरी सी घास, जर्द रेत पे सहरा के हरी हरी सी घास, सर्द रात के बुझे दिल में हरी भरी सी आस, सर्द रात के बुझे दिल में हरी भरी सी आस। ख्याली ही तो है मंजर एहसास का रंग, ख्याली ही तो है महज एहसास का रंग, रह रह के कह रही बुझी बुझी सी प्यास, रह रह के कह रही बुझी बुझी सी प्यास। और देखिए, मैं अपने टॉक शो में अपनी बात करता हूँ, मैं करता रहता हूँ। वॉल्ट विटमैन एक अंग्रेजी कवि हुए हैं जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास लिखी है इतनी मोटी। वो, उनकी यादगार लाइनें हैं, आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ, very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Not that I am trying to throw my weight around, but yes, मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतने आयाम हैं जिनकी मुझे बात करनी चाहिए। मैं कोई अपनी शेखी नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसकी भूमिका आपको बता रहा था मैं। ये आई एम लार्ज आई कंटेन मल्टीट्यूड्स कह के, कि जब से मैं सोशल साइट्स पे आया आज से 10-12 साल पहले से, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, कुछ भी है, मैंने अपनी तस्वीर बदल दी तो लोग कहते हैं आपने तस्वीर क्यों बदल दी। मैंने अगर कुछ लिख दिया तो आपके इसका मतलब क्या है। मैंने कुछ नहीं लिखा तो आपने ये क्यों नहीं लिखा। उन वाइज का जवाब, यस, ही वॉज अ मिस्टिक पोएट सर, Walt Whitman, American literature I have studied. So, Shakuntala, welcome. Why? Why do I change my pics? Why do I sing these songs? Why do I link my songs with my stories? What prompts me to do this all? Often I wonder, why do I refer to my past and pick up threads from the table of memory?
Why do I often question, suggest alternatives, poke in others' affairs, or them tease? Why do I try to educate others when they care not? Why I love to travel far and wide and live in the present, past, and future all? Why I am me, and thou art thou? Why is it so? Why I live? Why I have no answer to all this, except that I am a narcissist in love with myself. Akin to Walt Whitman, I am large, I contain multitudes. बहुत बातून हूँ मैं, बहुत ही वाचाल हूँ, बातूनी हूँ, गैरलेस हूँ, बातें ज़्यादा, और जाहिर है आपका एंटरटेनमेंट भी उसी तरीके से जो मैं करता हूँ. सो आखिर में आज तीज के दिन आपको अलविदा कहते हुए उन झूलों की एक बार याद करते हैं जो फिल्मों में झूलाए जाते थे, और झूलने के साथ साथ जो है वो कैमरा इधर से उधर, उधर से उधर जैसे रोल किया करता था. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ गीत याद करके, झूले में पवन के आई बहार प्यार कर से. और sir, you are saying real good poem about one's own self, great good word, narcissist, we like your good analysis. Thank you, sir. You always give add-ons to my compositions, whether they make sense or they do not make sense. But yes, you are always there to pat our back, and that's the role of a teacher, and an indulgent teacher for that matter. Sometimes I write trash and I scribble things which I myself don't really understand, but you attribute meanings to them, and you make them more meaningful for me at least, if not for anybody else around. So एक बार फिर आपको दोस्तों तीज की, हरियाली तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं. कल मिलते हैं 12 बजे, देसवाल्स टॉक शो 12 noon. Till then, goodbye. Enjoy your day. Happy Teej. Thank you, sir. Thank you.